Friends, so today I am going to deal with another important chapter of geography class 9, drainage. What do you understand by the term drainage? We all know that drainage means the river system of an area. Drainage describes the river system of an area. That means a river is flowing in the region along with its tributaries. The river along with its tributaries, they are called as drainage. Okay, and that area of land which is drained by a river and its tributaries, okay, that area of land is called as drainage basin. Do you know what is tributary? Tributaries are the small rivers that merge into the big rivers. Okay, they are relatively smaller than that of the big rivers. For example, river Yamuna is smaller in area than Ganga. So river Yamuna merged with Ganga. So river Yamuna is a tributary of river Ganga. So similarly, you will see that all the major rivers in our country are having a large number of tributaries. So that area of land which is covered by the rivers and its tributaries, that region is called as the drainage basin. Okay. Now, the very important topic of the chapter is the differences between the perennial rivers and non-perennial rivers. Perennial rivers किसको कहते हैं? जिसमें सालों भर नदी में पानी होती है. ओके. और नॉन पेरिनियल रिवर्स वो नदी होती है जो एक सीजन में सूख जाती है. So perennial rivers are those rivers which flow throughout the year, and non-perennial rivers are those rivers which do not flow for some period. All the Himalayan rivers are perennial rivers, okay, because they are originating from the glaciers. So there we do not find any scarcity of water in the Himalayan rivers at any season. But peninsular rivers are non-perennials. They get dry at one season. Okay. So some of the major perennial rivers are Ganga, Yamuna, Indus, Brahmaputra, etc. And you shall see that all the perennial rivers are having their origin from the Himalayas. So they are also called as the Himalayan rivers. And non-perennial rivers are those which are originating from the sources other than Himalayas. For example, Narmada, Tapti, Krishna river, Kaveri river, Godavari river. These are all the non-perennial rivers. Okay. So perennial rivers do not have to depend upon the rainfall. Perennial rivers में सालों भर पानी होती है, ग्लेशियर पिघलता है और वो that adds to the volume of water. So perennial rivers do not have to depend upon the rainfall, but non-perennial rivers are dependent on rainfall for their flow of water as they flow only during rainy season. बरसात के मौसम में नॉन पेरिनियल रिवर्स में आप पानी देखोगे ज़्यादा, है ना, और गर्मी के मौसम में खासकर ज़्यादातर नदियाँ सूख जाती है. तो यू हैव टू रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, the differences between the perennial rivers and the non-perennial rivers, or you can also say the differences between the Himalayan rivers and that of the peninsular rivers. The perennial rivers are Himalayan rivers and non-perennial rivers are peninsular rivers. Now, drainage pattern. नदियाँ बहुत तरह के पैटर्न्स बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न. द स्ट्रीम्स विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट, terrain and underlying rock structure. These patterns are known as drainage pattern. बहुत तरह के drainage patterns है, such as dendritic drainage pattern, okay, which develop where the river channel flows the slope of the terrain, है ना. बहुत सारी नदियाँ और tributaries मिला के dendritic pattern बनाती है. Then the rectangular drainage pattern. Rectangular drainage pattern क्या होता है? ये वो drainage pattern है that develops on a strongly jointed rocky terrain. ये बहुत ही मजबूत या स्ट्रॉन्ग
जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं। ओके, देन द ट्रेलिस पैटर्न एंड वेयर द रिवर इज ज्वाइंट बाय द ट्रिब्यूटरी एट राइट एंगल। ठीक है, ट्रेलिस पैटर्न आप देखिए, ये यहाँ पे रिवर जो है ट्रिब्यूटरी जो है देखिए राइट एंगल में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, डेंड्राइटिक पैटर्न आप देखिए, यहाँ पे नदी है और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, देख रहे हैं ना, तो ये डेंड्राइटिक पैटर्न ये बनता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रिब्यूटरीज मेन नदी के साथ मिल रही है राइट एंगल बनाते हुए, तो ये ट्रेलिस ड्रेनेज हो गया। ओके, उसके बाद देखिए आप रेडियल ड्रेनेज में एक सेंट्रल हाईलैंड है, एक हाईलैंड है, वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकल रही है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। So these are the different patterns which are formed in a drainage basin areas. Okay. Now let's talk about the Himalayan river system. The first is the Indus River system. See, it is one of the longest river. River Indus is one of the longest river in the world, covering the countries of China, India and Pakistan. And its length is 2900 kilometer. And what is the origin of Indus River? It rises near Lake Mansarovar. It makes delta in Karachi. देखिए यहाँ से इंडस नदी यहाँ से निकल रही है और ये इंडिया को क्रॉस करते हुए पंजाब और कश्मीर से गुजरते हुए ये पाकिस्तान में इंटर करती है। पाकिस्तान में ये पांचों नदियां इसकी ट्रिब्यूटरीज बनती है। देखिए झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये ट्रिब्यूटरीज बन रही है ना। और उसके बाद ट्रिब्यूटरीज बनाते हुए ये इंडस ट्रिब्यूटरीज मर्ज करती है इंडस रिवर में पाकिस्तान में, और उसके बाद ये इंडस रिवर जो है हैदराबाद से होते हुए ये अरेबियन सागर में मर्ज कर जाती है। ओके, ये इंडस रिवर ज़्यादातर कहाँ फ्लो कर रही है? पाकिस्तान में। देख लीजिए, इंडस रिवर इज कवरिंग मोस्टली द रीजन ऑफ पाकिस्तान, नॉट ऑफ इंडिया। So that is why Indus River is often called as the lifeline of Pakistan, as it helps in fulfilling the needs of people. Okay, तो फिर से आप देख लीजिए, यहाँ से इंडस की शुरुआत होती है। ठीक है, पाकिस्तान होते हुए पंजाब और कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वो इलाका जो कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में किया हुआ है, वहाँ से होते हुए फिर ये साउथ टर्न लेती है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है, देख लीजिए आप, चेनाब, रवि, सतलज, झेलम, ये मिलती है इंडस रिवर से। और फिर ये इंडस रिवर सारे पानियों को लेते हुए, है ना, ये हैदराबाद होते हुए दैट मर्ज इनटू द अरेबियन सी। तो दैट्स द जर्नी ऑफ रिवर इंडस। नेक्स्ट इज द गंगा रिवर सिस्टम। वी ऑल नो दैट गंगा इज वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा इमर्ज फ्रॉम वेयर? गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयन। और गंगा नदी जब निकलती है गंगोत्री से तो वो गंगा नदी नहीं कहलाती है, आपको पता है वो क्या कहलाती है? भागीरथी। और एक दूसरी नदी भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। तब देवप्रयाग में वो गंगा कहलाती है। ठीक है, मतलब भागीरथी नदी निकल रही है और कहीं से, और हिमालय के कहीं से अलकनंदा निकलती है, और दोनों नदियां मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। और जहाँ दोनों नदियां मिलती है, मिलके एक सिंगल रिवर बनाती है, दैट रिवर इज कॉल्ड एज रिवर गंगा। ओके, एंड द लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर्स। ओके, एंड दिस रिवर गंगा, सी दिस इज द जर्नी गोमुख, दैट इज गंगोत्री ग्लेशियर। ये देवप्रयाग है जहाँ से अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद गंगा अपना सफ़र तय करते हुए जब इलाहाबाद पहुँचती है तो यहाँ यमुना नदी उससे मिल जाती है, यमुना नदी मर्ज करती है, दैट इज नोन एज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना, दैट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना। फिर इलाहाबाद से होते हुए ये वाराणसी और पटना होते हुए झारखंड को टच करते हुए, झारखंड, हमारे झारखंड में एक जिला है साहेबगंज, वहाँ टच करते हुए, वहाँ से गुजरते हुए गंगा नदी बंगाल पहुँचती है, और वहाँ से फिर वो कलकत्ता में डेल्टा बनाती है, और एक ब्रांच चला जाता है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में वो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलते हुए मर्ज करती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पे वो डेल्टा बनाती है। ठीक है ना। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि गंगा का बहुत सारे नाम हैं।
जैसे जब गंगा निकलती है गोमुख से यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से, तो देन इट इज कॉल्ड एज भागीरथी। एंड व्हेन भागीरथी मर्ज विद अलकनंदा एट देवप्रयाग, इट called as Ganga. Then when Ganga reach, see here, when Ganga reach Bangladesh, sorry West Bengal, one of its branch, गंगा नदी का एक ब्रांच जो है वो कलकत्ता की तरफ चली जाती है और वहाँ वो कहलाती है हुगली नदी। और जो मेन ब्रांच है गंगा नदी की वो बांग्लादेश जाती है, और बांग्लादेश जब पहुँचती है वो गंगा नदी, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पद्मा, रिवर पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र नदी के साथ वो मिल जाती है और सिंगल रिवर बनाती है बांग्लादेश में, तो देन इट इज कॉल्ड एज रिवर मेघना। ठीक है, एंड दैट रिवर मेघना मर्ज इनटू fall into the Bay of Bengal after forming what? After forming a huge, a big delta that is called as the Sundarban Delta, which is the largest delta of the world. So the different name of Ganga is Bhagirathi, Ganga, Hugli, Padma and Meghna. Okay. The Ganga river is not only the major river, it is also a sacred river of India, and it is related with our religion. Okay, and our ancient text also mention about river Ganga. Okay, the river river Ganga is not only the lifeline of India, it is also attached with us emotionally and religiously. So river Ganga is important for us both commercially as well as religiously. Then see the Brahmaputra river. ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रहा है? इट राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मतलब गंगा जहाँ से निकलती है उसी के बगल वाले सोर्स से ब्रह्मपुत्र निकल रही है। अब आप देखिए यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत से, और तिब्बत से निकलते हुए वेस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, सांगपो नदी ये कहलाती है चाइना में। तिब्बत एट वन टाइम तिब्बत वाज अ सेपरेट कंट्री, बट नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ चाइना सिंस 1954। तो तिब्बत नहीं कहेंगे, हम चाइना ही कह सकते हैं। तो खैर तिब्बत से निकलती है रिवर ब्रह्मपुत्र और ये वेस्ट की तरफ जाती है। वेस्ट की तरफ जाते हुए फिर ये यहाँ से नामचा बरवा में ये यू टर्न ले रही है। देख रहे हैं, जब यू टर्न लेते हुए जब इंडिया अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब ये क्या कहलाती है? तब ये कहलाती है दिहंग। ठीक है ना, पहले ये क्या कहला रही थी चाइना में? सांगपो। देन इट टेक्स यू टर्न इन नामचा बरवा एंड इंटर अरुणाचल प्रदेश वेयर इट इज कॉल्ड एज दिहंग। क्या कहलाती है? दिहंग। और दिहंग के बाद जब ये असम पहुँचती है, बहुत सारे ट्रिब्यूटरी से इससे मिलती है और असम पहुंचती है, तब असम में ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और फिर ये ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब ये कहलाती है जमुना। ठीक है, और फिर जमुना और उधर से कौन सी नदी आ रही है? पद्मा, गंगा नदी पद्मा। और जमुना और पद्मा जब आपस में मिलती है तो ये कहलाती है मेघना। और यही मेघना नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है बाय फॉर्मिंग द डेल्टा दैट इज सुंदरबन डेल्टा। So like that of Brahmaputra, like that of Ganga, Brahmaputra also has several names such as it is called as Sangpo in Tibet, in Arunachal Pradesh it is called as Dihang, in Assam it is called as what? Brahmaputra, in Bangladesh it is called as Jamuna, and then when it merges with Padma, it becomes Meghna, and that Meghna falls into the Bay of Bengal river. Okay, so that is the journey of river Brahmaputra. तो see, Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar lake. It flow eastward. ये ईस्ट की तरफ जा रही है। सॉरी, मैं शायद मैंने वेस्ट कहा था। It is flowing eastwards parallel to the Himalayas. On reaching the Namcha Barwa, it takes a U-turn, enter India and Arunachal Pradesh through a gorge. Here it is called Dihang and joined by some tributaries to form the Brahmaputra in Assam. तो देख लीजिए आप यहाँ पे, यहाँ से गंगा आ रही है, ठीक है, और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही है, और दोनों मिलती है कहाँ पे? बांग्लादेश में मिलती है, और मिलने के बाद ये कहाँ गिर रही है? बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पे डेल्टा बना रही है दैट इज कॉल्ड एज सुंदरबन डेल्टा, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द व्हाट? विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड. Okay, that Sundarban delta is also called as Ganga Brahmaputra delta because it is formed by river Ganga and Brahmaputra. So that's all about the Himalayan rivers. Now let's talk about the peninsular rivers. See,
First of all, you have to study about Narmada Basin. River Narmada is one of the major peninsular river of India. It originates. You have to know. आपको जानना है कि ये सोर्स कहाँ से रिवर नर्मदा का और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं. इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ आपको जाननी नहीं है. तो पेनिनसुलर रिवर्स में आपके आ जाते हैं रिवर नर्मदा, विच ऑरिजिनेट्स इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश. इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली. The river drains the parts of Madhya Pradesh and Gujarat. It flows towards the west and drain into the Arabian Sea. Okay, Narmada Basin flows towards the west and drain into the Arabian Sea. You can see the map of Narmada. You see the course of the river Narmada river. River Narmada का आप कोर्स देख सकते हैं. See the course of river Narmada. It is originating from the Amarkantak plateau and then Narmada river they merge into the Arabian Sea. ठीक है, नर्मदा रिवर कहाँ मर्ज करती है? इट फॉल्स इनटू द अरेबियन सी विदाउट फॉर्मिंग एनी डेल्टा. ठीक है, बिना डेल्टा बनाए ये फॉल कर रही है अरेबियन सी में. देन रिवर तापी. रिवर तापी अनदर इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री. द थ्री लीडिंग स्टेट दैट द तापी रिवर फ्लोज थ्रू द गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश. तापी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द सतपुरा रेंज. अब यहाँ पे देखिए सतपुरा रेंज से ये निकलती है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. तापी रिवर इज वन ऑफ द रिवर हुज पोर्ट इज यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. तापी रिवर के पोर्ट को इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ किया जाता है. ठीक है, और 724 किलोमीटर इसका लेंथ है. तो कहाँ पे है? यहाँ पे आप देखिए तापी रिवर यहाँ से निकलती है और ये गुजरात के गल्फ ऑफ खम्बत में जाके मर्ज कर जाती है. देन गोदावरी. गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया. ओके, कहाँ से निकल रही है? नासिक से आती है ये, महाराष्ट्र नासिक से. 1500 किलोमीटर इसका लेंथ है ना. गोदावरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? गोदावरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिवर गंगा ऑफ साउथ इंडिया. इसको साउथ इंडिया का गंगा कहते हैं. इट कवर्स द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. एंड गोदावरी हैज मेनी ट्रिब्यूटरीज लाइक पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वैनगंगा, पेनगंगा. ये सब गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं. एंड गोदावरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स. ये दक्षिण गंगा भी कहलाती है. गोदावरी देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए नासिक से निकलती है गोदावरी और कई जगहों से होते हुए फाइनली ये मर्ज करती है बे ऑफ बंगाल में. और गोदावरी आप देखिए यहाँ पे डेल्टा भी बना रही है. देख रहे हैं ना, डेल्टा भी बनाती है गोदावरी. ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं द कोर्स ऑफ रिवर गोदावरी. देन महानदी. महानदी इज अनदर फेमस रिवर ऑफ इंडिया. ये कहाँ से आती है? छत्तीसगढ़, फ्रॉम द हिल्स ऑफ साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश, जो अभी छत्तीसगढ़ में है. 8 किलोमीटर इसकी लेंथ है. ओके, और इसके ट्रिब्यूटरीज है टेल एंड हसदो रिवर्स. और यहीं पे दुनिया की सबसे बड़ी डैम बनी हुई है, दैट इज द हीराकुद डैम. ओके, तो देख लीजिए आप, यहाँ से छत्तीसगढ़ रायपुर वाले इलाके से महानदी निकलती है और ये छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए उड़ीसा भी जाती है. उड़ीसा के मेजर रीजन को ये कवर करती है ना. संबलपुर में हीराकुद डैम है विच इज द वी कैन से दैट इट द हीराकुद डैम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्दन डैम ऑफ द वर्ल्ड. ओके, और यहाँ से फिर ये मर्ज कर जाती है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में, महानदी. देन कृष्णा रिवर. कृष्णा रिवर आप देख सकते हैं ये महाबलेश्वर से निकलती है ना, महाराष्ट्र से. और ये भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एंड इट्स लेंथ इज अराउंड 1300 किलोमीटर. ओके, कृष्णा रिवर आप देख लीजिए द कोर्स ऑफ रिवर कृष्णा. और तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी एंड रिवर भीम आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा. तो स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर एट लीस्ट 2 or 3 ट्रिब्यूटरीज ऑफ ऑल द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया. ओके, आपको सारे में जितने भी रिवर्स हैं इंडिया में, मेजर रिवर्स है, सबके 2-3 ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखने होंगे और कहाँ से निकलती है ये नदी, ये भी आपको जानना पड़ेगा. तो कृष्णा नदी की अगर ट्रिब्यूटरीज से आप बात करोगे तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, रिवर भीमा. ठीक है, ये सब इसके खास ट्रिब्यूटरीज है रिवर कृष्णा के. देन अनदर इंपॉर्टेंट रिवर इज कावेरी रिवर. ओके, सबसे साउथ में आपको मिलेगा कावेरी. ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रीम इन तमिलनाडु एंड इट फ्लोज थ्रू कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला. ओके, कावेरी रिवर्स बिगिंस फ्रॉम वेयर?
इट हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स इन कोडागु सिचुएटेड इन कर्नाटका, कर्नाटका से निकलती है। और देखिए तमिलनाडु से होते हुए ये क्या करती है, डेल्टा बनाती है, कावेरी डेल्टा बनाती है। ये काफ़ी फर्टाइल रीजन्स होता है, चावल की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको व्हीट बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इस रीजन को, ठीक है ना। ये कावेरी नदी जो है इसके ट्रिब्यूटरीज है, केरला से इसकी ट्रिब्यूटरीज जाके कावेरी नदी से भी मिलती है, और यही कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती है। देन लास्टली वी हैव टू स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स। लेक्स हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है, नदियों से ही बन जाते हैं झील बन जाती है। जैसे आपने ऑक्सबो लेक का नाम सुना होगा, है ना। नदी इतना टर्न करती है कि पानी का एक हिस्सा कट के अलग हो जाता है, और वो कहलाता है ऑक्सबो लेक। तो लेक्स के भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। लेक्स हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर, इट स्टोर्स रेन वाटर, देन इट हेल्प्स इन रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करता है लेक्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग लेक्स के पानी से निकालते हैं, बिजली निकालते हैं लेक्स से, ठीक है। और आसपास के क्लाइमेट को भी ये मॉडरेट कर देता है, क्योंकि अगर किसी एरिया में अगर लेक्स है तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। बहुत सारे हिल स्टेशन में आप देखोगे बहुत सारे लेक्स होते हैं, कश्मीर में आप चले जाओ, नैनीताल में चले जाओ, आपको बहुत सारे लेक्स मिलेंगे, है ना। तो दैट लेक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडरेटिंग द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग रीजन्स। आसपास के रीजन क्लाइमेट्स को वो बहुत ही मॉडरेट कर देता है। तो लेक्स के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिशिंग करते हैं लोग लेक्स में, बोटिंग करते हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है लेक्स जहाँ होते हैं वो एरिया काफ़ी खूबसूरत हो जाता है, वहाँ टूरिस्ट आते हैं, पिकनिक स्पॉट्स वहाँ होते हैं, ठीक है। तो देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ लेक्स, दैट इज वाई लेक हैज इट्स ओन इम्पॉर्टेंस इन आवर कंट्री। नाउ वी हैव टू डील विद सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑल्सो। जैसे कहा था वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है, डायग्राम से आप समझ सकते हो कि एक हाईलैंड एरिया होता है, वहाँ से जब बारिश होती है तो पानी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक हिस्सा यहाँ चला जाता है, दूसरा हिस्सा यहाँ चला जाता है। एक बहुत बड़ा वाटर डिवाइड है ना इंडिया में, कहाँ पे है, पंजाब में, अम्बाला में, ठीक है ना। तो बारिश होती है तो देख रहे हैं ना आप, ठीक है। तो व्हाट इज वाटर डिवाइड, इट इज एन एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड मतलब ये उठा हुआ एरिया, ये देखिए ये एलिवेटेड एरिया, इट इज एन एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन या माउंटेन और अपलैंड विच सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन। दो नदियों को सेपरेट कर रहा है, एक ड्रेनेज बेसिन यहाँ बन रहा है देख रहे हैं, और एक ड्रेनेज बेसिन यहाँ पे बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं वाटर डिवाइड, ठीक है ना। तो जैसे गंगा और इंडस का वाटर डिवाइड कहाँ होता है, अम्बाला में, पंजाब में। तो वाटर डिवाइड आप समझ लीजिए क्या है। फिर मियांडर तो आप जानते ही हैं, नदी का पानी जब स्लो हो जाता है तो ये इस तरह से टर्न लेके घूमने इस तरह से टर्न लेते हुए बहती है नदी, देख लीजिए आप, मियांडर। अ रिवर दैट फॉलोज अ वाइंडिंग कोर्स, वाइंडिंग मतलब इस तरह से वाइंडिंग कोर्स, ठीक है ना। हुप्स लाइक बेंड्स, इस तरह से ये मियांडर बनाती है। और कभी कभी तो इतना बड़ा मियांडर बन जाता है कि बगल में एक तालाब बन जाता है, जिसको हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी ऑक्सबो लेक के बारे में बताया था, ठीक है। देखिए ये है ऑक्सबो लेक। An oxbow lake is a curved lake that forms at a former meander of a river where the main stream of the river has cut across the narrow end। देखिए मेन स्ट्रीम जो है नदी का, ये नदी है मेन स्ट्रीम, ये कट कर जाता है यहाँ से, है ना, एक चैनल बन जाता है, नदी का चैनल बन जाता है अलग से, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है ये, है ना। इसको हम लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है ना। ये नदी से कट के एक साइड में एक देख रहे हो इस तरह से यू शेप्ड में एक तालाब बन जाती है, यहाँ भी आप देखिए, ठीक है, ये तालाब बन जाती है ना, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक। ओके, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।